So let us start with some numericals examples of heat engine and refrigeration. तो पहला example Carnot engine का है. Example 4.10. A Carnot engine receives 2.0 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and rejects some heat to the reservoir at 350 Kelvin. तो 500 Kelvin वाला source होगा hot reservoir and 350 Kelvin जो बोला है it should be sink, that is cold reservoir. So what is given to us is सबसे पहले Carnot engine receives heat. If you remember, heat absorbed was denoted by QH, that is 2 kilojoule मतलब 2000 joules. The temperature of hot reservoir, that is source, is 500 Kelvin. The temperature of cold reservoir is 350 Kelvin. You are supposed to find out, क्या क्या find करना है, how much work does it do. मतलब number one, you are supposed to find out work. Number two, how much is the heat rejected. अगर आपको याद होगा तो heat rejected was denoted by QC. Number three, they are asking you what is the efficiency of the engine. So obviously all of you, I hope, know what are different formulas involved here. So number one, work done का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा और याद होना चाहिए, QH is equal to W plus QC. तो W equal to QH minus QC. W equal to QH minus QC, right? The problem is कि आपको QC ही नहीं पता. You know what is QH, so it cannot be solved. तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे. दूसरा, efficiency का फॉर्मूला पता होना चाहिए. You should know what is efficiency. 1 minus which T by which T? TH by TC या TC by TH? TC by TH. Let us check. Work output upon heat input. Heat input मतलब it is clear कि नीचे H आना चाहिए, but anyways work is QH minus QC. QH minus QC by QH मतलब 1 minus QC by QH. मैंने आपको बताया था this is nothing but measure of temperature. तो ये आपके पास TC by TH आएगा, TC by TH आना चाहिए. तो these are the formulas that you will need, right? Number one, सबसे पहले अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बिना QC के तो होगा नहीं. इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी भी बताया हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब QC बाय QH इज TC बाय TH. तो QC इज QH into TC by TH. QH was 2000 joule. TC temperature of colder region मतलब cold reservoir 350, और ये है आपका 500 1 and 4 350 into 4 is 1400 joule. So this is the amount of heat rejected. It is simple now. 2000 एब्जॉर्ब हुआ, 1400 रिजेक्ट हुआ, तो वर्क डन कितना? 600. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 खत्म. So therefore work done is nothing but QH minus QC, which is 2000 minus 1400, which is 600 joule of work is done. ये पार्ट 1 डन. पार्ट 2 तो वैसे भी फाइंड कर लिया आपने. 1400 joule QC, amount of heat rejected is 1400. तो पहले वो फाइंड करना पड़ा हमको, बाद में वर्क डन मिला. तो this is how you are supposed to solve. And efficiency is simple task. 1 minus TC by TH. TC 350 upon 500. 7 are 10 are 10 minus 7, 3 by 10, 0.3. Not a good engine.
0.3 is a very less efficient. So this is not a very good engine, क्योंकि efficiency इंजन का जितना ज्यादा हो मतलब 1 के नियर होना चाहिए. And if it is 0.9, 0.95, that is a good engine, but 0.3 is less efficient. Okay, so this is how you're supposed to solve. So question easy है. Do not follow notations of textbook. Do not. Okay, वहां पे साइंस में ही कंफ्यूज हो जाओगे आप. So just follow this one. Next question. Efficiency of Carnot cycle is 75%. If temperature of hot reservoir is 727 degrees, calculate the temperature of cold reservoir. Very simple question. What is given to you is efficiency in terms of percentage. 75% मतलब 75 by 100 मतलब 0.75. This is what is given to you. Okay, and they have given you temperature of hot reservoir which is 727 degrees Celsius. याद रखना है जो फॉर्मूला आपने यूज किया था दिस वन, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन फर्स्ट. तो 727 प्लस 273 मतलब इट विल बिकम 1000 Kelvin is the temperature of the hot reservoir. You are supposed to find out temperature of cold reservoir. फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी अभी हमने यूज किया था, तो you should know efficiency is 1 minus Tc by Th. So this is a very simple question. So you can directly make a formula for T क्या चाहिए हमको, Tc. तो Tc by Th is 1 minus eta. तो Tc is Th into 1 minus eta. This is 1000. 1 minus 0.75, that is nothing but 0.25, that is nothing but 250 Kelvin. तो 250 केल्विन मिल गया. तो 250 केल्विन को अभी डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे, what will it be if you convert it into degrees? Calculations are correct, don't worry. 250 Kelvin is how many degrees? 23 या minus 23? Minus 23. So your answer here needs to be rectified because whatever we have done is correct. तो आपको minus 23 डिग्री मिलना चाहिए. Next question. A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. तो मैंने आपको कल ही बताया था coefficient of performance of your refrigerator is 5. आंसर 5 है. Let us check. Your मतलब the one you have in your household. So I'm not talking about commercial refrigerators, household refrigerator. Anyways, तो आपको बताया it operates between 250 and 300. Which one is higher? 300. मतलब pH will be 300. मतलब this is environment. Okay, and AC 250. Okay, and you are supposed to find out coefficient of performance K. This is what you're supposed to find. आपको इसका फॉर्मूला याद है, कल मैंने बताया था. मैंने आपको ये भी बताया था, इट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट. यहाँ पे आउटपुट होता है हीट QH और इनपुट होता है वर्क. तो ये QH by W और W आपको पता है W वर्क सेम फॉर्मूला QH minus QC. तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा QH upon QH minus QC, right? But wait a minute, I told you one more thing, that Q is proportional to T. So TH upon
TH माइनस TC, TH माइनस TC। ये हो गया आपका क्वेश्चन। Coefficient of performance K is TH upon TH minus TC. TH is 300 upon 300 minus 250, that is 300 by 50. How much is this? 6. Correct? It is 6. What is given in your 5? So that is not correct. तो आंसर आएगा आपका 6 यहाँ पे। So I will leave you with one point to ponder or point to check, better to see. You have to check how coefficient of performance is defined. Why I want you to check this? Because if some books, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है और कुछ बुक में इसको बोला है QC अपॉन QH माइनस QC, मतलब ये आएगा TC अपॉन TH माइनस TC। अगर ऐसा लिखते हो TC is 250, नीचे तो 300 माइनस 250 मतलब 50, 250 by 50 is 5, तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू वेरीफाई, चेक जहां पे मिले वहां से। ओके, सम बुक्स हैव गिवन यू दिस एंड सम बुक्स हैव गिवन यू दैट, तो चेक करना पड़ेगा आपको। चेक इट आउट, दैट इज योर होम असाइनमेंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? अगला क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन, हमने इसको पेंडिंग रखा था। A hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate the work done in 25 cycles. This is a cycle. It is a cyclic process. कहीं से भी start करो, it will come back to the same point again. Okay. तो आपको पूछा है what is work done in 25 cycles. Okay. तो सबसे पहले, do you remember work done from PV diagram? Work done during a cycle from PV diagram कैसे फाइंड करते हो? एरिया अंडर द कर्व। तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दैट इज व्हाई केप्ट इट पेंडिंग। तो आपके पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, इसको पीवी डायग्राम, पीवी कर्व, इसको आप इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हो। सपोज यू हैव अ सिस्टम गोइंग फ्रॉम A to B like this. Work done is nothing but area under the curve, ऐसा है। अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है सेम, तो वर्क डन इज ऑलवेज एरिया ऑफ दिस रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। क्लियर? तो यहां पे आपको पूछा है व्हाट इज वर्क डन इन 25 साइकिल्स। तो सबसे पहले what is work done in one cycle? Work done in one cycle. How do you find out work done in one cycle? Area of circle. What is area of circle? Pi r square, right? Pi r square. Can you apply it here? Can you apply that over here? Pi r square को यहाँ apply कर सकते हैं क्या? Definitely no. Why no? Why you cannot? This is work done area of circle, area enclosed by the circle. Why you cannot apply pi r square? Look, how do you define radius? What is radius? Distance from center to circumference. वॉल्यूम एक्सिस पे इट इज 4 minus 2, मतलब 2 into 10 power minus 3 है यहाँ पे, राइट? क्लियर? प्रेशर एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो आई विल डू वन थिंग, आई विल चेंज कलर्स सो इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप प्रेशर एक्सिस पे देखोगे, सो एट प्रेशर एक्सिस व्हाट डू यू सी? व्हाट इज रेडियस? 6 minus 1, 5 into 10 power 5, so it is
नॉट सेम इन बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे पाया स्क्वायर चलेगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? लेट अस कॉल दिस एज बी, लेट अस कॉल दिस एज ए। तो यू शुड नो area is pi into a into b. So area of this is pi a b because it is not a circle. So you should know this is not a circle first of all. क्योंकि सर्कल में सेंटर से सर्कमफरेंस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है, ऐसा नहीं है। So this is not a circle. So in this case, I will go other way around, मतलब bottom to top. So work done in this case is area enclosed. Therefore, work done is nothing but pi a b. ओके, हमें यहाँ पे गिवन लिखना ही नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है? यू जस्ट सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन इन 25 साइकिल्स। तो पहले वर्क डन इन 1 साइकिल निकाल लेंगे। Therefore, work done in 1 cycle है ये। Therefore, work done in 25 cycles will be W total, that is 25 times of W, that is 25 pi a b. Right? Clear? What is a? मैंने बताया। How do you find out a? a कैसे फाइंड किया आपने? a is equal to, कैसे फाइंड किया? ये वैल्यू कितनी है? 4 into 10 power minus 3. This is 10 power minus 3 which you cannot see by the way. So anyways, so a is 4 minus 2 into 10 power minus 3. 4 और ये 2, 4 minus 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि इस एक्सिस में 10 पावर minus 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2 into 10 power minus 3। कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में मेजर करते हो? मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका मीटर क्यूब। सिमिलरली प्रेशर एक्सिस पे आपने बी डिफाइन किया है। आई मीन इफ यू नो एलिप्स, बेसिकली यू नो सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस। सुना क्या एलिप्स? एलिप्स Kepler's laws of motion. Every planet moves in an elliptical orbit around the sun. Right? Elliptical orbit मतलब ये जो एक्सिस है वो सेम नहीं होते, एक बड़ा होता है उसके आधे पार्ट को बोलते हैं सेमी मेजर, एक छोटा होता है उसके आधे पार्ट को बोलते हैं सेमी माइनर। तो दिस इज हाउ इट इज। सो एनीवेज, बी कैसे फाइंड करोगे? 6। ये हियर यू हैव दिस एज 6। ये जो लाइन है ये यहाँ पे 6 को टच करती है। इफ यू कैन सी, इफ यू कैन नॉट सी, आई विल हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन, नॉट दिस सर्कल बाय द वे। तो एनीवेज समझ लेना कि ये 6 को यहाँ पे टच कर रहा है। तो दिस इज 6 minus 1। तो B will be 6 minus 1 into 10 power 5 है यहाँ पे 10 power 5 पास्कल। तो 5 into 10 power 5 पास्कल। ये आ गया आपके पास B। एरिया S, work done is in 1 cycle. I am repeating again and again. Work done in 1 cycle is area enclosed. Okay, so work done in 1 cycle. In 1 cycle, this is important. In 1 cycle is pi into a into b. Pi की वैल्यू आपको पता होती है। What is pi value? 3.14 or I'll say 22/7. एक ही बात है। Do we have some factor cancelling out? No, doesn't matter. तो 3.14 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो this is equal to 3.14 into a की वैल्यू थी 2 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 3 into 5 into 10 power 5. Good. 5 into 2, 10. 10 into 10 power 5, 10 power 6 minus 3, 10 power 3, 10 power 3 into 3.14, 31402. Good. Good.
इंटू 25, 25 इंटू 3140। इजी है, दिस इज इजी। इजी कैसे इजी? क्या करना है हमको? 3140 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। इस जीरो को साइड में रखो। 25 से मल्टीप्लाई करना था ना, 25 से इंटू 10 कर लिया, और एक बार इंटू 10 कर लिया, और एक बार 5 किया। इसका हाफ, व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? 3000 का हाफ कितना? 1500। 140 का हाफ कितना? 70। 1570 राइट। ये 314 इंटू 25 और इस बेचारे को छोड़ दिया था 78500। ऐसा आना चाहिए 78500। करेक्ट। एक बार वापस वेरीफाई कर लो। हमको क्या करना था? 314 इंटू 25, 3140 इंटू 25 करना था, तो इस जीरो को मैंने साइड में रखा था। 314 इंटू 25 मतलब 314 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, जीरो राइट। 7 प्लस 4 प्लस 4 15, 5 1 5 6 7 8 8 3 3 6 1 7, और ये जीरो अपना वापस से आ गया। करेक्ट। तो दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले वर्क डन इन वन साइकिल निकालो। इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ सर्कल। ओके, लुक्स लाइक अ सर्कल बट यू कैन नॉट अप्लाई पाई आर स्क्वायर बिकॉज रेडियस इज नॉट सेम। तो पहले ए फाइंड करो, ए and then find b, then work done in one cycle is pi ab. Good. In 25 cycle is 25 into pi into a into b. Done. Next question. The figure shows VT diagram for one cycle of hypothetical heat engine which uses ideal gas. Draw PV and PT diagram. आपको वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम दिया है हीट इंजन का फॉर वन साइकिल। आपको बोला है ड्रॉ पीवी एंड पीटी डायग्राम। गुड। तो हम एक एक करके करते हैं। एंड बाय द वे दिस क्वेश्चंस दे कैन आल्सो आस्क यू इन सीईटी जेईई नीट। पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस ग्राफिकल। सो व्हाट यू विल डू इज पीवी डायग्राम। तो पहले प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देख लेते हैं। V and P। ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई प्रोसेसेस। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? V कहां से जा रहा है? A से B, A to B, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। करेक्ट। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट। दिस इज आइसोबारिक। राइट। पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बाद में प्लॉट करेंगे। B to C, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, आइसोथर्मल। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल है, मान लेना। C to D, अगेन वॉल्यूम इज decreasing with temperature at constant pressure. This is again isobaric. यहां पे वापस से isothermal. This is isothermal again. Correct. The first step is to always identify processes. Then plot it here. कहां से स्टार्ट किया था? A से। तो लेट मी स्टार्ट विथ सम रैंडम पॉइंट A। लेट अस से यहां पे ये A है। ओके। A से B क्या था? आइसोबारिक। पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट रीचेस B। एरो देते जाना साथ में। राइट। प्रेशर कांस्टेंट है, यस। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यस। उसके बाद था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट।
मतलब P is inversely proportional to V, मतलब Boyle's law, करेक्ट। Boyle's law अप्लाई करोगे यहाँ पे, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो कहां जाना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए या वहां जाना चाहिए, इट शुड कम हियर और देयर, टुवर्ड्स origin, towards origin. So volume, wait, volume is decreasing, pressure is also decreasing, no, yes, so volume is decreasing, pressure is increasing, it should not be a straight line, straight line बता दिया तो गए, Boyle's law of physics, because you are saying it is a straight line, मतलब y equal to mx, so that is not the case, तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा, तो A to B, B to C, इसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहूंगा, आई नीड टू कीप सम स्पेस नियर द एक्सिस, सो डजंट मैटर, इसको बाद में एक्सटेंड कर लेंगे एनीवेज। अब C to D क्या था, आइसोबारिक, अगेन आइसोबारिक, बट टेम्परेचर डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज आल्सो डिक्रीजिंग, वॉल्यूम देखो C का वॉल्यूम ज्यादा है C पे और D पे वॉल्यूम कम है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्या आ गया D, C से D वॉल्यूम कम हुआ, यस वॉल्यूम कम हुआ, देन इट इज अगेन आइसोथर्मल, D to A, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब बॉयल्स को ओबे करेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, राइट, हो गया पार्ट 1 सॉल्व, so you have this as the correct graph, तो थोड़ा सा एक्सिस बढ़ा लेते हैं, then I need to keep some space for this, okay, so this is how it will look like, समझा गया ये, I will repeat once again, step number 1, from the given graph identify कौन सा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, कब होता है, जब प्रेशर हो कांस्टेंट, मतलब दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक, A to B is isobaric, okay, good, so I will better write it down, so A to B isobaric process, then what happened was B से C टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस बट P is inversely proportional to V, so B to C is which process, isothermal, and then again C to D is isobaric and D to A is again isothermal, isobaric and isothermal again, राइट, अब सिर्फ प्लॉट करना था A से B, आइसोबारिक मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एज यू गो फ्रॉम A to B, राइट, देन उसके बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फ्रॉम B to C वॉल्यूम डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब प्रेशर विल increase, volume decreases, so volume के लिए you have to come towards origin, but for pressure you have to go away from origin along Y, clear, right, C to D again isobaric, but this time volume is decreasing, and then again from D to A you have isothermal, ये पहला ही क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा बाकी है PT डायग्राम, PT is not physical training, it is pressure temperature, okay, so PT diagram, okay, so here I will have temperature axis and here I will have pressure axis, PT, अब क्या करेंगे PT डायग्राम, हाउ टू प्लॉट दिस, अगेन सेम थिंग,
आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो एक पॉइंट ले लो, सम पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट। बट टेम्परेचर का क्या हो रहा है वहां पे, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, राइट। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ क्या आना चाहिए, शुड इट बी अ स्ट्रेट लाइन। अरे तीन ही तो लॉ है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-लुसाक्स लॉ, तीन लॉज। व्हाट दिस टेल्स इज आइसोबारिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग इज दिस ग्राफ। व्हाट रॉकेट साइंस, नथिंग, सिंपल। प्रेशर कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट। देन B to C, isothermal, constant temperature, isothermal. V changes with T, pressure constant, right? क्या हो रहा है B से C, क्या कम हो रहा है यहाँ पे B से C, वॉल्यूम, करेक्ट, ओके। वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर increases at T. So what should I do? Volume decreases, pressure increases, temperature is also constant. So can I show it like this? Yes. Check कर लेना एक बार, temperature constant है, that is true. Pressure increase होगा क्योंकि volume decrease हुआ, that is also true. So B to C, correct. C से D, isobaric again, मतलब you have no option left but to draw a straight line here. तो ऐसा ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका C से D एंड देन लास्ट स्टेप इज फ्रॉम D to A, हो गया। दिस इज हाउ यू विल गेट, क्लियर, क्वेश्चन डन। Next question. A system is taken to its final state P 10 power 5 Pascal. Okay, from it is taken to final state from some initial state in hypothetical paths as shown in the figure. Calculate work done in each case. कुछ नहीं है, they are telling you that there is a cyclic process. कोई भी इनिशियल स्टेट में क्या फर्क पड़ता है, यू टेक इनिशियल स्टेट ए, इट गोस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड बैक टू ए। इफ यू टेक बी एस स्टार्टिंग पॉइंट, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए टू बी, बैक टू बी, कोई भी एक पॉइंट ले लो, इट इज जस्ट, दे आर जस्ट टेलिंग यू इट इज साइक्लिक प्रोसेस, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच ऑफ दिस थिंग्स, राइट, गुड। वैसे बाय द वे देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, process going from A to B. Of course, it is at a constant pressure. It is isobaric. And do you remember work done is pressure into dV? So P constant है, final volume minus initial volume. This is 6 into 10 power 5. 6 into 10 power 5. Volume final is 6 in liters. 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. ये L पे ध्यान देना, ये L, this L is for liters, so it is in liters. So final volume is 6, initial is 2. So you will have 6 minus 2 into 10 power minus 3, क्योंकि 1 liter is 10 power minus 3 meter cube, करेक्ट। तो ये आएगा आपका 6 इंटू 4 इंटू 10 पावर 2 माइनस नहीं 5 एंड माइनस 3 प्लस 2 2400 जूल। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, आई टोल्ड यू एरिया अंडर द कर्व, फाइंड करो एरिया अंडर द कर्व, यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज दिस एरिया अंडर द कर्व एंड डन। तो ए से बी के नीचे का एरिया फाइंड करो, दैट्स इट। तो यू कैन सिंपली डू दैट एनीवेज। From
from B to C. B to C. If you are awake, if you have understood, 0. Why 0? Constant volume, isocoric process में work done is always 0. क्यों? क्योंकि यही 0 आ जाएगा. Final volume and initial are same. तो गया 0. From C to D. Again, work done from C to D is प्रेशर की वैल्यू कितनी यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा. आई डोंट नो व्हाट इट इज 1 और व्हाट, आई डोंट नो, आई नीड टू चेक. जस्ट अ मिनट, दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक इनकम्प्लीट टू मी. सो ओके, तो इट्स समथिंग रॉन्ग. ये जो 2 है ये गलत जगह पे दे दिया इन्होंने. तो दे शुड बी गिविंग यू दिस नॉट हियर, इट शुड नॉट बी हियर, बट इंस्टेड इट शुड बी ओवर हियर. और ये बराबर है. नाउ इट इज करेक्ट. ओके, तो फ्रॉम प्रिंटिंग एनीवेज, तो कितना है ये प्रेशर कितना है 2 इंटू कितना 10 पावर 5. फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 6 इंटू 10 पावर -3. तो दिस इज 2 इंटू -4. 2 इंटू -4 इज -8 इंटू 10 पावर 2, क्योंकि 5 -3 2, 10 power 2 is 100 minus 800 joule, right? By the way, gas was expanding. A से B, expansion. Initial volume कम है, final ज्यादा है. Work done by the gas, positive. C to D, compression. Final volume is less than initial. Compression, work done on the gas, negative. Correct. तो हमारा आंसर करेक्ट है. आखिरी में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन फ्रॉम D to A is 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. राइट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ. लेट्स वेरीफाई कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. टोटल वर्क डन कितना है? इट इज जस्ट अ क्रॉस चेक. ओके, व्हाट इज टोटल वर्क डन? 24 में से 800 गए, 1600 जूल. दिस इज जस्ट अ क्रॉस चेक. कैसे करोगे आप इसका एरिया, कैसे फाइंड करोगे? दिस इज 4. इज दिस 4 इंटू 10 पावर -3? यस. दिस इज 6 -2, 4 इंटू 10 पावर 5. टोटल साइकिल का वर्क डन क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड. अभी अभी किया था एरिया एनक्लोज्ड, इतना जल्दी भूलना नहीं. 4 इंटू 10 पावर 5, 4 इंटू 10 पावर -3, 16 इंटू 10 पावर 2, 1600. करेक्ट. तो आपका ग्राफ से ये जो एरिया अंडर द इनसाइड दिस कर्व आएगा, इट शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन कितना आया? 16. ये कितना आया? 16. मतलब करेक्ट. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर.